the first dy by dx. It will be 5x raised to 4 plus minus 4x raised to minus 4 minus 1 is minus 5. Root x is the standard one. We know it's 1 upon 2 root x and 9 is 0. So at the end plus minus is minus. तो यहाँ पे मैं इसे पूरा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ. 5x raised to 4 minus 4x raised to minus 5 plus 1 upon 2 root x. Similarly, next dy by dx. It is minus 3x raised to minus 3 minus 1. एक लेस होता है minus 3 minus 1. तो minus 3 already negative है. Minus 3 minus 1 will be minus 4 then. X raised to minus 4, it is minus 4 x raised to minus 4 minus 1, which is minus 5. It is 5 by 2 x raised to 5 by 2 minus 1. LCM लेंगे तो 3 by 2 and 3 is my 0. So plus minus is minus. Third question, dy by dx derivative. E raised to x का derivative is e raised to x. X raised to minus 7 का derivative minus 7 x raised to minus 8. Why n minus 1 and 3 raised to x. It is a raised to x. A raised to x का derivative a raised to x log a. A raised to x log a. Next, y is equal to, now we have three terms again. Derivative of each term, e raised to x is e raised to x plus 25 raised to x ka, that is a raised to x. A raised to x log a, और x raised to 25, it is algebraic के अंदर आएगा. So x raised to 25 is 25 x raised to 24. X raised to minus 7 का, it is minus 7 x raised to minus 8. X raised to minus 3 by 2 का minus 3 by 2 x raised to minus 3 by 2 minus 1 minus 5 by 2 plus x raised to 5 by 2 का 5 by 2 x raised to 5 by 2 minus 1, which is 3 by 2. ठीक है. This is final answer, but किसी किसी ने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव किया, that's very good. But again we know the answer. अपने पास ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से देख लेना कि किस फॉर्मेट में आंसर रखना है. मैं भी आगे वो एक्सप्लेन करूंगा, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली वी कीप द आंसर इन दैट फॉर्मेट एंड वी कैन वेरीफाई कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है. ठीक है. अभी सेम मैंने जो फॉर्मेट बताया, इसी के बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूँ. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा y इज इक्वल टू 1 अपॉन x रेज टू 9 प्लस x रूट ऑफ x. मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है. एंड एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. both these are not in a standard form. सबसे पहले we'll make it in proper form. तो देखो ध्यान से सुनो. 1 अपॉन x रेज टू 9 है, तो आई कैन राइट x रेज टू माइनस 9, मतलब 9 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा. साइन विल गेट चेंज. लॉ ऑफ इंडाइसेस है, यू नो. अगर नीचे पॉजिटिव पावर ऑफ m है तो व्हेन यू टेक अप इट इज नेगेटिव पावर. m वैसे ही रहेगा, रेसिप्रोकल नहीं होगा, जस्ट साइन चेंज होगा. और यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा कि दो x कंबाइन आ रहे हैं, मतलब x इंटू रूट ऑफ x. तो आई विल कंबाइन देम, x इंटू रूट ऑफ x. दो x को कंबाइन करके एक ही x में लिखेंगे. x इंटू रूट मीन्स रेज टू हाफ होता है. रूट मीन्स रेज टू हाफ. और इंटू में एज यू नो वन मोर फॉर्मूला अगेन इंडाइसेस का ही, a रेज टू m इंटू a रेज टू n is a raised to m plus n. तो पावर ऐड हो जाएगा, दैट इज x raised to ये 1 प्लस हाफ 3 by 2. तो x रूट x का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इट इज x raised to 3 by 2. So anyways you have, whenever it is x का फॉर्म, always get it in the form of x raised to n, a single power, x raised to n, x raised to n. Now we'll differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x.
So now both are in standard form, dy by dx. So x raised to -9 is -9 x -9 -1, 3 by 2 x, 3 by 2. Now the rest of the procedure is same. It is -9 x raised to -10 plus 3 by 2 x raised to 3 by 2 -1 is 1 by 2. Actually there is a practice कि हमेशा पावर पॉजिटिव रखो. तो जो फर्स्ट टर्म है -9 x रेस्ट टू -10 है ना, तो इफ आई कैन गो, नीचे से ऊपर जाएंगे साइन चेंज होता है, तो डेफिनेटली ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो भी साइन चेंज होगा. तो इफ इट इज x रेस्ट टू -10 विच इज ऊपर है, आई विल टेक इट डाउन, साइन चेंज मतलब +10 एंड 3 by 2 x रेस्ट टू 1 by 2. दिस इज माय आंसर. वैसे आंसर यहाँ तक भी सफिशिएंट है. इफ यू राइट इट, अगर 12th में हो, बोर्ड में हो, इफ यू आर राइटिंग योर आंसर टिल हियर, इट इज ओके, करेक्ट है, फुल मार्क्स मिलेंगे. And if you are writing in this way, so it is just a way of representation. Okay, the derivative must be correct, that's sure. Okay, so this is a few where we don't have that standard form. So first you have to get that in standard form, applying law of indices, and then take derivative. तो ये तभी होगा जब ये x raised to n के प्रॉपर फॉर्म में होगा. जैसे यहाँ पे नहीं था ना, दो टर्म थे, तो कैसे ले सकते हैं. यहाँ पे था पावर, लेकिन वो नीचे था. आई हैव टू टेक अप, पहले उसको ऊपर लेकर आएंगे, देन विल टेक डेरिवेटिव. ठीक है. सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस. अब थोड़ा सा और एडवांसमेंट करते हैं. सपोज वी वांट टू टेक डेरिवेटिव, y is equal to x raised to 3 plus x raised to 5. बट अब बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ गया कि वेरिएबल तो है, दो टर्म है, बट अभी आगे नंबर भी डाल दे रहा हूं मैं. समझो यहाँ पे 3 डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे 10 डाल दे रहा हूँ. तो मेरा क्वेश्चन है, इट इज 3x क्यूब plus 10x raised to 5. It is 3x cube plus 10x raised to 5. Now, differentiate with respect to x. How many terms are there? We have 2 terms. तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक बता दे रहा हूँ, y is equal to f of x. अगर कोई भी फंक्शन के आगे अगर कोई नंबर लिख कर आया, समझो कि मैं नंबर को यहाँ पे c ले रहा हूँ, कोई भी नंबर, तो रूल ये है कि जो नंबर f ऑफ x, मतलब x का जो भी फंक्शन रहेगा, x रेज टू 5 हो सकता है, x रेज टू 3 हो सकता है, x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंड c इज एनी नंबर. तो ये जो c रहता है, इसको कांस्टेंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मल्टीपल. मतलब फंक्शन का मल्टीपल है वो. क्या है? मल्टीपल. सो व्हेन यू टेक डेरिवेटिव, जब तुम डेरिवेटिव लोगे dy by dx, तो c को टच नहीं करना, c जैसा है वैसे ही लिख दो. जो भी फंक्शन रहेगा तुम्हें उसका डेरिवेटिव लेना है, दैट इज f डैश ऑफ x. दैट्स इट. छोटा सा एग्जांपल लेता हूं तो समझ में आएगा. सपोज मेरे पास x रेज टू 5, इसका डेरिवेटिव लेना है, बट इसके साथ एक और नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, से 7. इट इज 7x रेज टू 5. 7 अलग है, x रेज टू 5, 7x रेज टू 5. एंड इफ यू वांट टू टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, तो dy by dx एक ही टर्म है ना, मल्टीप्लाई मतलब ये दो टर्म नहीं, इट इज अ सिंगल टर्म ओनली. तो 7 जो है ये कांस्टेंट, इट इज अ मल्टीपल ऑफ x रेज टू 5. x रेज टू 5 का मल्टीपल है, तो कीप दैट 7 एज इट इज, उसको टच नहीं करना है. और x रेज टू 5 का डेरिवेटिव लेंगे, मतलब 7 का डेरिवेटिव लेना ही नहीं है. तो जिस भी फंक्शन में अगर कोई मल्टीपल है, टेक मल्टीपल आउट, उसको एज इट इज रहने दो, उसको टच नहीं करना है. उसके साथ जो x का टर्म रहेगा, x का टर्म, यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट. तो x रेज टू 5 का डेरिवेटिव विल बी 5x रेज टू 4. So answer is 35x raised to 4, and that's your answer, 35x raised to 4. So now let's start. यहाँ पे दो टर्म दिए, दोनों का डेरिवेटिव लेना है. फर्स्ट टर्म में मल्टीपल 3 है x के आगे, और सेकंड में मल्टीपल 10 है. तो इफ यू टेक डेरिवेटिव, दैट इज dy by dx. So let's start. 3 एज इट इज रहने दो, टच नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कीप इट एज इट इज. विल टेक x रेज टू 3 का डेरिवेटिव, इट विल बी 3x 3 minus 1 which is 2. 10 वैसे ही बाहर रहेगा. x रेज टू 5 का डेरिवेटिव 5x 5 minus 1 which is 4. 3 3s are 9, x square, 10 5s are 50, x raised to 4. This is what we have, dy by dx. Done. तो जो भी नंबर्स रहेंगे वो आगे लिखना है. ठीक है. एक और एग्जांपल लेते हैं, प्लस माइनस दोनों इस बार लेंगे हम लोग. 4x raised to 8 plus 6x raised to 3 by 2 plus 5x
प्लस 7। ठीक है, तो अगर मैंने बीच में समझो समवेयर अगर माइनस डाल दिया तो दैट वोंट मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस, जैसा दिया वैसे साइन कॉपी कर देंगे, दैट्स इट। नाउ डिफरेंशिएट, दिस इज माय फंक्शन, आई वांट टू टेक डेरिवेटिव, दैट इज dy by dx। हाउ मेनी टर्म्स वी हैव, जस्ट काउंट इट, 1। टर्म्स कैसे होते काउंट करते, प्लस माइनस अगर बीच में आ गया तो नए नए टर्म, जैसे प्लस आ गया तो नया टर्म आ गया। मल्टीप्लाई ये दो टर्म नहीं, इट इज अ सिंगल टर्म ओनली डियर, जब तक माइनस या प्लस साइन ना आ गया है। वन मोर टर्म एंड वन मोर, सो फाइनली वी हैव 4 independent terms, so we'll take derivative of these 4 independent terms। फर्स्ट है, इट इज 4x raised to 8। 4 को टच नहीं करना है, एज इट इज, एज आई सेड, कोई भी x के आगे जो नंबर आता है, x के आगे दैट नंबर इज ऑलवेज मल्टीपल, और मल्टीपल को जस्ट साइड में बाहर रख दो, उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, ओनली द x का पार्ट जो रहेगा उसी का डेरिवेटिव लेना है। x raised to 8 इज 8, x raised to 7। फिर से x के आगे जो नंबर आएगा दैट इज मल्टीपल, कीप इट इज एज इट इज, एंड दिस इज 3nx raised to n minus 1। फिर से 5 बाहर आ जाएगा, बचा अंदर x का डेरिवेटिव इज 1, 7। इसमें कहीं भी x है ही नहीं, दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, देयर इज नो x टर्म, एंड इट इज ट्रीटेड एज नॉट अ मल्टीपल, क्योंकि इसके पास तो x ही नहीं है ना, इट इज कांस्टेंट, it is constant, it is an independent term, there is no x term, it is independent, constant, and the derivative of constant is 0, and that's my answer। So you can multiply 4 into 8, 32 x raised to 7 plus 6 into 3 by 2, so 6 3 is 18, 18 by 2 is 9, 9 x raised to 3 by 2 minus 1 is 1 by 2 minus 5, and that's it। This is dy by dx, that's it। ठीक है, suppose I'm writing x raised to 5 plus 5 log x minus 3 e raised to x, so let's take derivative, dy by dx, so it is 5 x raised to 4, 5 बाहर आएगा, log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x, 3 बाहर आएगा, e raised to x का डेरिवेटिव इज e raised to x, so the final answer is 5x raised to 4 plus 5 by x minus 3 e raised to x। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव्स के जो बेसिक्स थे। अब धीरे धीरे सम्स का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, बट एक बार समझ में आ गया सब पार्ट कैसे किया मैंने, क्लियर है? The first rule is product rule and the second rule is quotient rule। What is product rule? Here two functions are multiplying together, यहाँ पे दो functions multiplied हो गए, तो y is equal to u into v, यहाँ पे two functions are multiplying together, that is u and v are multiplying together। एंड क्वोशिएंट रूल में क्या होगा, इट इज u डिवाइड बाय v, जहां पे दो फंक्शन डिवाइड कर रहे हैं। In the first case where the two functions are multiplying together, and in the second case where the two functions are dividing together। ठीक है, now let's start product rule, differentiation with respect to x, differentiation with respect to x, and it is not as easy as you think। मतलब ऐसा नहीं कि इनटू है तो बस दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे हो जाएगा मल्टीप्लाई में, नो, देयर इज अ फॉर्मूला ये है, if you are taking derivative dy by dx is equal to u into derivative of v, मतलब u as it is लिखेंगे into v का डेरिवेटिव प्लस v into डेरिवेटिव ऑफ u। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, ये हुआ u into v का। एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। If you have multiplication of two functions, that is u and v, so it is u derivative of v plus v derivative of u, again u derivative of v plus v derivative of u। इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट में लिख सकता हूं मैं, dy by dx को y डैश लिखूंगा, तो इट इज u v डैश
वी यू डैश, मतलब y का डेरिवेटिव विल बी व्हाट, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। जहां भी डैश रहेगा वो डेरिवेटिव टर्म रीड करो तो हो जाएगा यार। सपोज वी हैव क्वोशंट रूल, मतलब डिवीजन रहा, तो उसमें कैसे लेंगे डेरिवेटिव, dy बाई dx। इसमें प्लस था प्रोडक्ट में, इसमें माइनस रहेगा। उसमें u से स्टार्ट किए थे, इसमें v से ही स्टार्ट करना, दैट इज श्योर, मतलब डिनोमिनेटर में जो v रहेगा उससे स्टार्ट करना है। द फॉर्मूला इज v डेरिवेटिव ऑफ u, v लिखेंगे तो u का डेरिवेटिव, हियर इट इज माइनस साइन, u डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज dv बाई dx अपॉन v स्क्वायर। अपॉन है तो अपॉन रहेगा, बट v का स्क्वायर लिखना है अपॉन में। दिस इज u बाय v रूल। एक बार मैं इसे रीड कर दे रहा हूं, dy बाई dx इज इक्वल टू, इट इज v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम v, डोंट बी कंफ्यूज्ड, v से स्टार्ट करना है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ऐसा बोलूं y डैश, मतलब y का जो डेरिवेटिव रहेगा इट विल बी व्हाट, v u का डेरिवेटिव, u v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट टू जस्ट मेमोराइज दिस फॉर्मूला, ठीक है। बट यही मैंने बताया, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल थोड़ा डिफरेंट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपल है, सीधे जैसा दिखा वैसे ले लो। सो जस्ट राइट इट डाउन दिस फॉर्म में,